A very good morning to all the students of class 8. Dear students, how are you all? I hope taking good care of yourself and your family members too. Dear students, do not go out of the house because staying home is staying safe. As you know, COVID-19 is spreading a lot. So, be protected, dear students. That's why the school is coming to your home so that you are protected in your shelter and there is no problem that comes to you. So, dear students, I, Nila Saini, your SST teacher, I come with the thought of the day, that is, a person who feels appreciated while or will always do more than is expected. That means किसी की भी प्रशंसा करोगे तो वो और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेगा. It is like when I appreciate your work, you people, if I say good, then you people feel very happy, and what you do, try to do is more nice than what you people have done. So that ma'am should give very good, and very good will do for excellent. Like that only, if at your home your mom cooks for you, you should appreciate that thing. She cooks for you, she washes your clothes, and all that she does, you cannot pay her without saying, appreciating that. I know if you don't appreciate, then also she'll do all those things. But if you appreciate, she'll be happy. Appreciate your father, appreciate him for getting whatever you want, fulfilling all your needs and demands. Your grandparents, for all the time they spent with you, your brothers and sisters. So each and every human being needs an appreciation. On that note, I, Neela Seni, start with a chapter that is the tribal tycoons and the vision of golden age. You know, in previous session also I have given you the introduction. So starting up with the introduction again, this tribals are the people who are just जिनको आदिवासी बोला जाता है. They are the आदिवासीज. And tycoons are the outsider according to the tribals. Tribals सोचते हैं कि जो डाइकून्स उन्होंने नाम दिया हुआ था आउटसाइडर्स को, जो कि आउटसाइडर्स हैं. एंड द गोल्डन विजन इज, जो गोल्डन विजन मतलब गोल्डन विजन भगवान का, गोल्डन विजन ऑफ द बिलीफ दैट ही इट इज the will of the what was the golden age of that time. We have discussing in this chapter. As I have told you, there is a person who is Birsa in this chapter. Birsa is a tribal of मुंडास जो है वो ट्राइबल का नाम है. तो वो मुंडास का एक बिरसा जो है वो मेंबर था. ही वॉज, उनकी स्टोरीज यू कैन गेट लॉट्स एंड लॉट्स स्टोरीज, यू कैन सी ऑल्सो दैट उनके बारे में बोला जाता है ब्रिटिशर्स थे. ही वॉज द यंगेस्ट पर्सन हु फॉट फॉर हिज ट्राइबल पीपल. एट द एज ऑफ 25 ही डाइड ऑल्सो बिकॉज ऑफ ही गॉट ill in the jail, and there only he died. And but he did lots and lots of things for the tribals. Tribals used to think about him as he was the god. They prayed him like a god. He also had given a wordings that you can read in your book, that is, God has sent me to serve my tribal people. He not only worked for the Mundas but also for other tribes like Santals and Orions. So he was like whenever he could cure them, any person who was ill, he could cure that person. He could also cure the person, and he could also क्या कहते हैं, cultivate grain. He could grow the grains. So that's why the people worshipped him, and he helped his Munda dynasty, Munda tribe a lot. He worked for them a lot for his. Though the customs and the rituals of the tribals are different from the Brahmins, then too the tribals, and you know that their dressing sense also is different from that of common person. Their rituals, their customs, they followed by most of the tribals are very different from those of the Brahmins.
These societies were not characterized by division of कास्ट सोसाइटीज. जो कास्ट सोसाइटीज होती है इनको इससे नहीं करेक्टराइज किया जाता था. ऑल दोज हु बिलोंग्ड टू द सेम ट्राइबल थॉट of themselves as sharing common ties of kinship, but they did have society and economy. They had social and economical differences between tribes. Tribes में भी अपना social और economical differences होता था. Even their living style was different. How did tribals group lived? Their living style was in the 19th century की बात कर रहे हैं हम. 19th century के जो tribes थे वो 4 टाइप की चीज़ों पे सर्वाइव करते हैं. सम वर द जूम कल्टिवेटर्स, सम वर द हंटर्स एंड द गैदरर्स, एंड सम वर द हर्डर्स एनिमल. दे हर्डेड एनिमल्स. एंड द फोर्थ वन वाज द परमानेंट सेटलमेंट. सम वर हैड परमानेंट सेटलमेंट. नाउ जूम कल्टिवेशन में वी हैड डिस्कस दैट some tribals who were practicing zoom cultivation, that is shifting cultivation. This cultivation is done in the how is it done? Is done on the small patches of land. Small patches of land पे किया जाता है. And the planters cut down the tree tops. वो tree tops को इसलिए काटते थे ताकि sun rays should come to the ground. And burnt the vegetation to clear it for cultivation. और वो burn कर देते थे vegetation to clear the for cultivation. Cultivate करने के लिए अपने उसको crops को. After the crops were ready and harvested, they were shifted to another fields. जब crops जो है वो ready हो जाते थे harvest करने के लिए तो वो shift कर दिए जाते थे another crops पे, another field पे. Shifting cultivation were found in the hilly and the forest trades में of north east and central India. अब ये जो जूम कल्टीवेशन होता था ये होता था नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में. दीज ट्राइब्स पीपल मूव फ्रीली विद इन द फॉरेस्ट. ये लोग फ्रीली मूव करते थे विद इन द फॉरेस्ट. बट ये स्टॉप कर दिया जाएगा फ्रॉम ब्रिटिशर्स बिकॉज ब्रिटिशर्स वर अगेंस्ट देम. उनको फिर भी जो परमानेंट सेटलमेंट वाले थे दे यूज्ड टू थिंक दे आर बेटर देन दिस. नेक्स्ट कम्स दी हंटर्स एंड द गैदरर्स. अब हंटर्स एंड द गैदरर्स क्या करते थे? ये लोग ना जो हंट करते थे एनिमल्स, फॉरेस्ट में जाके हंट करते थे एनिमल्स. एंड दे गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. फॉरेस्ट के जो भी प्रोडक्ट्स होते थे वो करते थे कलेक्ट. क्यों करते थे? क्योंकि वो उससे वो अपने श्रब्स और हर्ब्स से मेडिसिन बनाया करते थे. और ये करते थे खोंडास, KHOND, हॉन्स. These are the tribals जो ये वाली ट्राइबल कम्युनिटी करती थी. Who served on collecting hunts and divided the meat among themselves. ये हंटिंग करते थे और मीट अपने बीच में ही डिवाइड कर लेते थे. They commonly eat, वो कॉमनली जो खाते थे फ्रूट्स एंड रूट्स खाते थे. कॉमन जो फूड का खाना था वो था फ्रूट्स एंड रूट्स. एंड यूज्ड ऑयल. ऑयल वो सीड्स मैंने आपको पहले सेशन में बताया था कि जो कॉमन जो ऑयल सीड्स हैं ये यूज करते हैं सैल एंड महोया. दीज आर द ऑयल सीड्स फॉर कुकिंग. एंड श्रब्स और हर्ब्स वर यूज्ड फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, फॉर मेडिसिन पर्पसेस. बट इन लोगों को क्या होता था? कई टाइम इनको लोन लेना पड़ता था लैंडलॉर्ड से, बिकॉज मनी लैंडर्स से, जस्ट बिकॉज टू बाय मोर प्रोडक्ट्स. जो ये जो चीज़ें इनके पास नहीं होती थी. और लेकिन जो वो मनी लैंडर्स होते थे वो बहुत हाई लोन इंटरेस्ट पे किया करते थे. तो फिर बहुत हाई लोन रेट पे लोन देते थे, बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे. नाउ थर्ड कम्स दी हर्डेड एनिमल्स. मतलब हर्डेड एनिमल्स मतलब हर्डिंग एंड रेयरिंग ऑफ शीप्स एंड कैटल रेयरिंग एंड शीप रेयरिंग. इसका वर्क करते थे. बट अकॉर्डिंग टू द सीजन, जो सीजन होता था उस सीजन के अकॉर्डिंग ये रेयरिंग होती थी. नाउ सम टुक टू बी द सेटल्ड कल्टिवेटर्स. जो सेटल्ड होते थे मतलब एक जगह पे रहकर दे यूज्ड टू, जैसे छोटा नागपुर में मुंडे कम्युनिटी थी वो वो सेटल्ड कम्युनिटी थी. और वो कल्टिवेशन वगैरह जो भी करते थे वो एक सेटल्ड प्लेस में करते थे.
Tribal groups ever before, even before the 19th century began settled down the land of the Mundas of Chota Nagpur belong to the clan as a whole. As a whole वो एक clan को belong करते थे. All members of the clan were regarded as regard किया जाता था ओरिजिनल सेटल्ड से, जैसे कि दे आर ओरिजिनल सेटल्ड. और ये ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे वो भी पसंद करते थे उनको बिकॉज दे वर सेटल्ड पीपल. नाउ नेक्स्ट कम्स द हाउ डिड द कॉलोनियल रूल इफेक्टेड ट्राइबल लाइफ्स. अब जो कॉलोनियल रूल आया उससे क्या इफेक्ट हुआ लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स का. अब ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल्स द लाइफ ऑफ द ट्राइबल पीपल चेंज्ड. आई टोल्ड यू देयर ओनली कि ये सब इन सब की लाइफ चेंज हो जाएगी. अब व्हाट हैपेंड टू द ट्राइबल चीफ्स. ट्राइबल चीफ्स के साथ क्या हुआ. Before the British arrived, the tribal chiefs were important people. पहले tribal chiefs जो थे ना वो important people थे Britishers के आने से पहले. They enjoyed economical power and had the right to administer. उनके पास economical power थी और right to administer करने का था and control their territories. और वो control करते थे अपनी territories को. But their functions and power changed अंडर ब्रिटिश रूल्स. बट उनके फंक्शंस और पावर को चेंज कर दिया गया ब्रिटिश रूल के अंडर. ब्रिटिशर्स ने उनको नहीं करने दी अपनी मनमानी. दे लॉस्ट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स. उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स खो दी. एंड वर फोर्स टू फॉलो लॉज मेड बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया. जो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने लॉ बनाए उसको फॉलो करने पर मजबूर कर दिया जो ट्राइबल पीपल को के अगेंस्ट थे. अब नाउ What happened to the shifting cultivators? अब shifting cultivators बेचारों के साथ क्या हुआ. The British wanted tribal groups to settle down. वो चाहते थे tribal groups सारे settle down हो जाए, as it was easy to control and administer settled peasants. जो settled peasants होते हैं उनको administer करने में और बहुत आसान होता है क्योंकि जो ये हंटर्स और गैदरर्स हुए जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं उसके साथ तो बहुत मुश्किल हो रही थी इनको क्योंकि ये लोग उनके साथ नहीं कर पा रहे थे. उनको पता ही नहीं लग पा रहा था कि ये कहाँ जा रहे हैं. तो दे वांटेड कि एवरीवन शुड सेटल. और जो लॉज एंड रेगुलेशंस जो नए ट्राइब्स के इन्होंने बनाए जो ब्रिटिश रूल्स में बने उसी को फॉलो करें. द ब्रिटिश कंट्रोल्ड लैंड सेटलमेंट टू गेट रेगुलर रेवेन्यू सोर्स फॉर द स्टेट. रेगुलर रेवेन्यू सोर्स स्टेट के लिए हो जाएगा अगर ये लोग सब सेटल हो जाएंगे. लैंड सेटलमेंट मीन्स अ ब्रिटिश मेजर्स द लैंड. लैंड मेजर करती थी वो हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था और मेजर करके उसका रेवेन्यू डिसाइड होता था कि कितना रेवेन्यू दिया जाएगा लैंड का. बट अगर परमानेंट सेटल्ड नहीं है तो उसका तो डिसीजन नहीं हो सकता कुछ भी. सो द ब्रिटिशर्स मेजर्ड द लैंड, defined the right of each individual to that land and fixed the revenue demand for the state. डिमांड जो स्टेट की थी उसको फिक्स कर दिया गया. द ब्रिटिशर्स एफर्ट टू सेटल जूम कल्टीवेशन वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल. उन्होंने कहा कि जूम कल्टीवेटर्स को सेटल करने की बात हुई बट दैट वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल. वो सक्सेसफुल नहीं हुआ. Facing widespread protest, the British had to ultimately allow them the right to carry on shifting cultivation in some parts of the forest. ये इसके खिलाफ बहुत साथ दिया इसने बिरसा ने और बहुत प्रोटेस्ट हुए और फिर ब्रिटिशर्स को हार माननी पड़ी और उनको अलाउ करना पड़ा जूम कल्टीवेशन को. बट उन्होंने फिर कुछ पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट दे दिए कि इतने पार्ट नहीं करना है. फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट्स. अब फॉरेस्ट के क्या लॉज है और उसके क्या इम्पैक्ट्स हैं. फॉरेस्ट के जो लॉज बना दिए गए, ट्राइबल्स लाइव्स वर डायरेक्टली इफेक्टेड बाय द चेंजिंग इन द फॉरेस्ट लॉ. जब फॉरेस्ट के लॉ चेंज हो जाएंगे तो डायरेक्टली इफेक्ट होगा जो जितने भी ट्राइबल्स हैं क्योंकि वो तो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थे. सम फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज रिजर्व्ड फॉरेस्ट, कुछ को रिजर्व फॉरेस्ट बोल दिया गया, एज दे प्रोड्यूस्ड टिम्बर विच द ब्रिटिशर्स वांटेड. क्योंकि वो टिम्बर प्रोड्यूस करता था वो ब्रिटिशर्स को चाहिए था तो इसलिए वो फॉरेस्ट जो थे वो रिस्ट्रिक्टेड कर दिए. द ब्रिटिश पीपल स्टॉप्ड द ट्राइबल पीपल एंटरिंग द फॉरेस्ट बट दे फेस्ड अ प्रॉब्लम ऑफ
गेटिंग लेबर, ठीक है, उन्होंने ब्रिटिशर्स ने स्टॉप कर दिया कि नहीं आएंगे यहाँ पर। तो उन्होंने फिर इसके अगेंस्ट क्या किया, उन्होंने फिर उनको लेबर मिलनी बंद हो गई, उन्होंने कहा नहीं आएंगे। ट्राइबल पीपल ने उनको टिम्बर के, ठीक है तुम्हारे रिजर्व है तो कीप इट रिजर्व, बट हु विल कम फॉर द वर्क, विदाउट लेबर तो ये लोग कर ही नहीं सकते थे। सो द कॉलोनियल ऑफिशियल्स केम अप एंड विद अ सोल्यूशन, फिर उनको सोल्यूशन करना पड़ा। द कॉलोनियल ऑफिशियल डिसाइडेड टू गिव जूम कल्टिवेशन, तो उन्होंने फिर डिसाइड कर लिया कि हम जूम कल्टिवेशन देंगे इनको। फिर लाइक दिस the impact of the small patch of the land in the forest and allowed them to cultivate. In return, those who lived in the village had to provide labor to the forest department. उसके जगह पर उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेबर पहुंचानी पड़ेगी, विलेजर्स देने पड़ेंगे, आपस में सेटलमेंट हो गई। Many tribes groups dissolved the new rules. बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स ने न्यू रूल्स को डिसोबे कर दिया कि हम नहीं मानते, हमें नहीं, मतलब कोई नहीं करना है। कंटिन्यूड विद उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करा। दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल एंड एट टाइम रोज इन अबाउट रिबेलेंस शुरू हो गया, क्योंकि वो उनको बोल दिया कि भाई दे आर नॉट ओबेइंग, दैट मीन्स दिस पीपल आर इलीगल, इनका काम जो भी हो रहा है वो इलीगल है। फिर उस टाइम पे क्या हुआ, एक रिबेलेंस मतलब उन लोगों ने रिवोल्ट करना शुरू किया अगेंस्ट दिस कि व्हाट इज दिस, यू हैव टू डू, बट दे ट्राइबल सेड वी विल नॉट डू। सो द प्रॉब्लम्स विद ट्रेड, अब प्रॉब्लम्स क्या आई ट्रेड के साथ। During the 19th century, traders and money lenders started coming into the forest more often. अब क्या हो गया, जो मनी लैंडर्स और जो ट्रेडर्स थे वो 19th सेंचुरी में ज़्यादा से ज़्यादा आना शुरू हो गए फॉरेस्ट में। दे वॉन्टेड टू बाय फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट खरीदना चाहते थे। ऑफर्ड कैश लोन्स देने के चाहते थे। एंड आस्क्ड ट्राइबल ग्रुप्स टू वर्क फॉर एजेस, ट्राइबल ग्रुप्स को वर्क करने को कहते थे कि बहुत ईयर्स तक तुम्हें वर्क करना पड़ेगा। इन द 19th century, the demand of Indian silk was high in European market. इंडियन सिल्क की तो डिमांड यूरोपियन मार्केट में 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा थी। द सिल्क मार्केट एक्सपैंडेड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी एनकरेज सिल्क प्रोडक्शन, सिल्क प्रोडक्शन को एनकरेज किया गया क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी ऑफ सिल्क। सो इन जो ये दो संथाल्स थे, ये लोग तो रीच्ड कोकोनट्स, क्योंकि ये कोकून्स से बनता है ना, तो कोकून्स and the trader declared the silk gave loans to the tribal people and collected the cocoons. फिर उन्होंने क्या किया, लोन देना शुरू किया कि वो cocoons को और प्रोड्यूस करें। The middleman had huge profit. मिडलमैन को तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा ना। cocoons को ट्रेडर डीलर्स तक पहुंचाना है। इन सिल्क गेव लोन दिया, जिसने लोन दिया टू द ट्रेडर्स, और कोकून जो मिडलमैन है ही इज अर्निंग द प्रॉफिट। द सर्च ऑफ वर्क, अब क्या हुआ, सर्च ऑफ वर्क, व्हाट इज दैट? सर्च ऑफ वर्क होता है फ्रॉम द लेट 19th century टी प्लांटेशन स्टार्टेड कमिंग अप, ट्री प्लांटेशन बहुत ज़्यादा हो गया। एंड द मिनिंग became an important mining became an important industry. माइनिंग जो थी वो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री बन गई। ट्राइबल्स वर, जो ट्राइबल्स में था उसमें द ट्री प्लांटेशन ऑफ असम एंड द कोल माइनिंग ऑफ झारखंड, कोल माइनिंग ऑफ झारखंड और ट्री प्लांटेशन जो थी ये बहुत ज़्यादा इन डिमांड आ गई। तो ब्रिटिशर्स अब और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि ट्राइबल्स के बिना इन लोगों का नहीं होगा। सो द क्लोजर लुक विल बी डिस्कसिंग इन closer look and the Birsa Munda. About both these things we'll be discussing in our next session. I hope you like this session. Thank you and have a nice day.